اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد ملت چینل سے خالد مسعود خان حاضر خدمت ہے۔ میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں بیٹے اور بیٹیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ ایجوکیشن پر ولاگ میرا سامنے آیا ہے، وہ آپ نے سن لیا سمجھ لیا۔ آج ہم دو ٹاپک پر بات کریں گے، پاکستان کے اندر دہشت گردی اور عمران خان کی سیاست پر۔ تو پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست پر، جیسا کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے بلکہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان نیازی 26-27 سال پہلے سیاست کی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور سیاست کے میدان میں بے پناہ ناکامیوں کے بعد پھر عروج پر پہنچا ہے۔ میں ایک بات اور واضح کرتا جاؤں کہ عمران خان ورلڈ کپ 1992 کے بعد 1992 کے بعد پوری دنیا کی اسکرین پر عمران خان تھا، عمران خان ہے اور آنے والا وقت بھی عمران خان کا ہوگا۔ میں چونکہ ٹاپک دو ہیں عمران خان کی، میں صرف دو آپ کو باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، وہ ریکارڈ کا حصہ ہوں گی، اسے محفوظ کر لیجئے گا۔ اگر میرے الفاظ اور میری باتیں غلط ہوئی تو میں جرمانہ دینے کا حقدار ہوں آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلے تو ایک واقعہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کی اپنی رہائش گاہ پر کچھ لوگ وفات پا چکے ہیں اور کچھ لوگ ابھی تک زندہ ہیں۔ عمران خان مولانا عبدالستار خان نیازی کے پاس آتا تھا، کئی گھنٹے بیٹھا رہتا تھا، تو میں بھی گواہ ہوں اور محترم عطا اللہ خان روکھڑی وہ بھی حیات ہیں، وہ بھی گواہ ہیں۔ اسلم خان روکھڑی مرحوم وفات پا چکے ہیں۔ تو عمران خان مولانا عبدالستار خان نیازی سے پوچھتا ہے کہ میں کون سی اسلام کی بک کا مطالعہ کروں؟ تو مولانا عبدالستار خان نیازی عمران خان کو کہتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکس کا مطالعہ کریں۔ تو پھر عمران خان فرماتے ہیں کہ کس کی لکھی ہوئی؟ تو مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت بطل حریت فرماتے ہیں کہ انگریز نے لکھی ہے، کافر نے لکھی ہے، جس نے بھی لکھی ہے سیرت کی بک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے آپ مطالعہ کریں۔ تو عمران خان دنیا کی بے شمار بکس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی، اس کی اپنی لائبریری ہے بنی گالا کے اندر، اس نے بے پناہ مطالعہ کیا ہے اور وہ سیاست کے راستے پر اس طریقے سے چلا ہے اور ریاست مدینہ کا نام اس طریقے سے استعمال کیا ہے۔ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں جو فرق ہے، جو فرق تھا، جو اب فرق نہیں ہے، تو اس پر وہ بات کرتا رہا۔ تو ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو مولانا عبدالستار خان نیازی اپنی سیٹ قومی اسمبلی کی عمران خان کو دیتے ہیں اور عمران خان وہاں سے MNA پہلی بار منتخب ہوتا ہے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی انتخابات میں شرکت نہیں کرتے، ضعیف ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، عمر زیادہ ہو گئی تھی، لیکن وہ خود سیاست سے کنارہ ہو گئے تھے، لیکن اپنے سارے ساتھی وہ عمران خان کو دے چکے تھے۔ بے شمار لوگ ہیں اور وہ سیٹ پہلے مولانا عبدالستار خان کی تھی، پھر عمران خان کی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر عمران خان وہاں پر قائم دائم ہے۔ عمران خان کو کوئی ہرانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بات، دوسری بات غور سے سن لیں کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھا، امریکہ کے اندر انتخابات ہو رہے تھے صدارت کے، اور دو کینڈیڈیٹ تھے، ایک ٹرمپ تھا صدر امریکہ کے صدر ٹرمپ، وہ انتخابات میں حصہ لے رہا تھا اور بائیڈن اس کے مقابلے میں انتخابات میں شامل تھا۔ چونکہ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان نیازی کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی، افغانستان سے اگر ٹرمپ جس وقت وہ صدر تھا تو یہ فوجیں لے کر واپس امریکہ چلا گیا تھا۔ یہ عمران خان کی جرأت، مہربانی اور محبت تھی کہ ٹرمپ سے منوایا کہ یہاں سے فوجیں لے جائیں، امن قائم ہو جائے گا، ان لوگوں کو کام کرنے دو۔ تو ٹرمپ عمران خان کی وجہ سے یہاں سے فوجیں نکال کر
वापस चला गया था अमेरिका। दूसरी बात, जब इंतखाबात हो रहे थे ना, तो इमरान खान ने अमेरिका के अंदर जलसा किया था, वो ट्रंप के हक में, और सिर्फ पाकिस्तानी जो कि वहाँ पर अब शहरी हैं, वो उनके शहरी हैं, शहरियत उनको मिली है, वो कोर्ट कास्ट करते हैं, तो उनको कहा था कि ट्रंप को वोट दें। ट्रंप हार गया था, बाइडन सदर अमेरिका का बन गया था, और वहाँ से उसने इमरान खान पर हमला किया है, इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया है। सबका आर्मी चीफ बाजवा साहब, जैसे इमरान खान कहता है कि वो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसकी, तो वो सारा एक मुख्तसर खाका है कि ये हो गया। अब अमेरिका के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, अब ट्रंप की बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर पोजीशन है, जितने सर्वे आए हैं उसमें बेपनाह ट्रंप की पोजीशन है, ट्रंप ने जीत जाना है। तो उनके इंतखाबात नवंबर में मुकम्मल हो जाएंगे, इसी साल नवंबर में इंतखाबात में मुकम्मल हो जाएंगे। दिसंबर के अंदर ट्रंप अमेरिका का सदर का हल्फ उठा लेगा। जब ट्रंप अमेरिका का सदर बन जाएगा तो फिर इमरान खान कहाँ खड़े होंगे, ये नोट कर लें कि नवंबर दिसंबर तक इमरान खान जेल से बाहर होगा, दोबारा इंतखाबात होंगे, और 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा। और इतनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, इतनी तेज़ी से पाकिस्तान ने तरक्की करनी है कि दहशत गर्दी ख़त्म हो जाएगी और लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा, गुर्बत अफलास कम होनी शुरू हो जाएगी, दोबारा पाकिस्तान अपनी पटरी पर चल पड़ेगा। अब ये बातें नोट कर कर लिख लें। अब दूसरा हिस्सा आज का व्लॉग का, वो दहशत गर्दी पर है। खुदा की कसम हम इंतहाई खौफजदा हैं कि हमारी सारी ज़िंदगी तो इस दहशत गर्दी का सामना करते हुए गुजर गई। मेरी 67 साल उम्र है और हमने कुछ होश संभाला तो ये दहशत गर्दी हमें विरसे में मिली है। कभी हथौड़ा ग्रुप आ जाता है, कभी कौन सा ग्रुप आ जाता है, कभी बच्चों को अगवा करने वाला ग्रुप आ जाता है, कभी मस्जिदों में धमाके करने वाला ग्रुप आ जाता है, कभी कौन सा ग्रुप आ जाता है, कभी कौन सा ग्रुप आ जाता है। अब ज़हनी तौर पे हम थक चुके हैं, हम अपनी नस्लों की वजह से परेशान हैं। कि कैसा मुल्क है, यहाँ पर इस्तेकाम नहीं है, यहाँ पर सुकून नहीं है, यहाँ पर प्यार मोहब्बत नहीं है, यहाँ नफ़रत ही नफ़रतें हैं, यहाँ अदारे और सियासी अदारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अदलिया और इंतज़ामिया एक दूसरे को ऊंचा नीचा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, नफ़रतें नफ़रतें। अब देखें, जैसे 9 मई का वाक़या हो गया तो किस तरीके से इमरान खान को पकड़ा गया, गिरबान से खींचा गया, और किस तरीके से इश्तिहार दिलाया गया, और किस तरीके से एक मनसूबा बंदी के ज़रिए किस तरीके से 9 मई का वाक़या कराया गया, दहशत गर्दी। चलो इन बातों को भी छोड़ दें। आप जानते हैं कि ज़ियाउल हक सदर पाकिस्तान था, आर्मी चीफ भी था, और उसके दौर में रशिया के ख़िलाफ़, अब भाई अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने रशिया की फ़ौजों को बुलाया कि आओ लॉ आर्डर का मसला है, हमारी मदद करो। रशिया, अफ़गानिस्तान और उनका अंडरस्टैंडिंग, तो हमने क्या किया, वहाँ पर अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट की, लोगों को ख़रीदा, लोगों ने रशिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, रशिया के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान ने भी मदद करनी शुरू कर दी, और अमेरिका की मदद भी आना शुरू हो गई। आप देखें 7 साल 8 साल ये जंग जारी रही। ये भी सुन लेना कि वही जंग थी ना, जमात इस्लामी की हिज़्ब इस्लामी, हिज़्बुल मुजाहिदीन तंजीम थी, किसी की अबाबील थी, किसी की हरकतुल मुजाहिदीन थी, और किसी की कौन सी तंजीम थी। बेशुमार दीनी सियासी जमातों को और इनफरादी तौर पर सियासी जमातों, दीनी जमातों के विंग बन गए। क्या बन गए? विंग बन गए, जो अफ़गानिस्तान में जाकर रशिया के खिलाफ लड़ते थे। और फिर तालिबान पैदा हो गए। तालिबान कैसे पैदा हो गए? मौलाना समीउल हक के मदरसे थे, जो हज़ारों तालिब इल्म पढ़ते हैं ना, वहाँ से अचानक जनाब वो तालिब इल्म थे तो वो तालिबान बन गए, उनको असलवी मिल गए, उनको ट्रेनिंगें मिल गई, और उन्होंने जनाब पूरे इलाके फतह करते करते अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया।
फिर उसामा बिन लादेन बैठ गया, और फिर क्या हुआ, 9/11 हो गया, और फिर दोबारा पाकिस्तान पर जनाब मुशर्रफ साहब तशरीफ़ ले आए। मुशर्रफ साहब बन गए इसी नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने जो हाल किया था वो आपके सामने है। अब अमरीकी ने कहा कि हमें अड्डे दो, हमारी मदद करो, हमने 9/11 का बदला लेना है, तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं। तो इसी पाकिस्तान की धरती पर अमेरिका की फ़ौजें आ गईं, अफ़गानिस्तान पर अटैक शुरू हो गए। तो पाकिस्तान की आवाम भी, दीनी जमातों की अस्करी तंजीमें, और उसके बाद आप जानते हैं जो कुछ हुआ। रशिया शिकस्त खा गया ना, 7 साल वो लड़ता रहा, शिकस्त खा गया, रशिया टोटे टोटे हो गया। और इसी तरीके से जब वो मुशर्रफ ने ये सिलसिला जो हमने पाले थे ना, तो मुशर्रफ ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान, और उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि वही जो हमने बनाए थे, हमने तराशे थे, वो बुत जो हमने तराशे थे, उन्होंने हमारे साथ लड़ना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर धमाके करने शुरू कर दिए, पाकिस्तान आर्मी के साथ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। आप बेशुमार खौफनाक बातें हैं, बेशुमार खौफनाक वाक़यात हैं। हमारे जनरल तक शहीद हो गए, ब्रिगेडियर तक शहीद हो गए, आर्मी के मेजर कर्नल, बेशुमार की पोस्टों पर रहने वाले हमारे आर्मी के जनाब पाक आर्मी के वो शहीद हो गए। बेशुमार इक्तिसादी तौर पर हम तबाह बर्बाद हो गए अमेरिका की जंग लड़ते लड़ते। ये हमारी पोजीशन है। और दहशत गर्दी जारी सारी है, अब भी दहशत गर्दी जारी सारी है। क्या हमारी पाक फौज कमज़ोर हो चुकी है? क्या पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के पुलिस, रेंजर, ये अदारे कमज़ोर हो चुकी हैं? या पाकिस्तान की आवाम कमज़ोर हो चुकी है, उनका पाकिस्तान से इत्मीनान उठ चुका है, या पाकिस्तान के इन अदारों के साथ खड़े नहीं होना चाहते? कोई ना कोई वजह तो है ना कि हम जनाब 50 सालों से इस दहशत गर्दी का शिकार हैं। चल इन बातों को भी छोड़ दो, दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी दहशत गर्द पैदा हो गए। कैसे पैदा हो गए? रहीम यार खान कच्चे के डाकू, वो कच्चे के डाकू, उनको ख़त्म करने के लिए पंजाब के आईजी को, ये प्रेस की मैं बातें कर रहा हूँ, अब मैं प्रेस की बात कर रहा हूँ, कि 4 अरब रुपया आईजी पंजाब को दिया गया साबका निगरान दौर में। साबका कल की बात है कि कच्चे के डाकुओं को ख़त्म करने के लिए, कच्चे के डाकुओं को ख़त्म करने के लिए 4 अरब रुपया दिया गया कि ये ख़त्म करें। मेरे भाई वो तो ख़त्म नहीं हुआ ना, बल्कि हमारे वो जो घरों के कफील थे पुलिस वाले, वो जनाब बहुत से 15-16 शहीद हो गए। कितनी अफसोसनाक बात है कि कच्चे के डाकू हमारी पुलिस को इस बेदर्दी तरीके से मारते हैं। उसका अपना चैनल चला हुआ है, वाह भाई वाह। इतने हमारी रियासत के सतून कमज़ोर हो चुके हैं कि कच्चे के डाकू अपना वीलाग तैयार करते हैं, रोज़ाना जनाब उसकी बातें आ रही होती हैं। मैं ऐलान करता हूँ, मुजाहिद मिल्लत फोरम ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत के बैठे हुए ऐवानों तक मेरी आवाज़ पहुँचा दो कि तमाम कच्चे की ज़मीन हमारे नौजवानों को अलाट कर दी जाए। जो 4 अरब से आप डाकुओं को ख़त्म नहीं कर सके, हमें सिर्फ 2 अरब रुपया पाकिस्तान का दिया जाए कि हम वो 2 अरब रुपया उन लोगों को तकसीम करेंगे जो वहाँ की ज़मीन आबाद करेंगे। ये तो सिर्फ एक मियाँ वाली का डिस्ट्रिक्ट है ना, इसे ठेका कर लें। हम मियाँ वाली के लोग भेजते हैं, ज़मीन आप अलाट करें, 2 अरब उनको कर्ज़ हसना दे दें, जो वो बाकी जो आबादकारी के लिए लाजमात हैं वो चीज़ें ख़रीदेंगे और अफरादी क़ुव्वत के साथ लेकर जाएंगे, वहाँ पर बैठ जाएंगे। तो हम गारंटी देते हैं, जो कच्चा जिस इलाके तक हमें अलाट करेंगे वहाँ पर एक डाकू भी नहीं होगा। डाकू जाने और हम जाने, मुजाहिद मिल्लत फोरम पाकिस्तान के लोग जाने, हम आपको सफाया कर देंगे। अगर बड़ा ठेका करना है ना रहीम यार खान से सिंध तक, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट में भी एक कच्चा है, वहाँ पर भी 200-250 मफरूर हुआ करते थे। और जब मियाँ वाली के लोग खुद निकल पड़े, ज़मीनों को आबाद कर दिया, चश्मा बेराज की गवर्नमेंट से, अदारे से लोगों ने ठेके पर अपने ज़मीनें ले ली। 500 कनाल, 1000 कनाल, वो सारी पूरा कच्चा आबाद है। एक भी आपको
इश्तिहारी नहीं मिलेगा, एक भी मफरूर नहीं मिलेगा, एक भी डाकू नहीं मिलेगा, तो दोबारा सुन लो, मेरी ये आवाज़ पहुँचाओ हुकूमत वक्त तक, कच्चा हमें अलाट किया जाए, हम नाम देंगे उन लोगों को अलाट किया जाए, फी कास 500 और 1000 कनाल के हिसाब से, और 2 अरब रुपया हमें कर्ज हसना भी जारी किया जाए, जो उनको तकसीम किया जाएगा, वो असला लेकर जाएंगे, वो कच्चा आबाद करेंगे। जब एक कच्चे की ज़मीन हज़ारों एकड़ लाखों एकड़ हम आपको आबाद कर देंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये जो कच्चे के मफरूर है ना, ये कोई इतनी बड़ी बात है यार। रियासत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि कच्चे के डाकू कितने होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, 150 होंगे, और यार 150 से ज़्यादा तो नहीं होंगे। वो जनाब अपना चैनल चला रहे हैं और तड़ियाँ दे रहे हैं। मर गए हैं हम सारे पाकिस्तानी। हम तैयार हैं, हम सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब तमाम से अपील करते हैं, आओ हमें बुलाओ। और मेरी अब तमाम पाकिस्तानियों से अपील है, इस वीला को आम करें, शेयर करें, तो इस हमारे चैनल को करें, जो हम हर मुहिब वतन पाकिस्तानी बनकर हम हर चीज़ को ओपन कर रहे हैं, हर चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में खूबसूरत जमहूरियत के लिए। बस ये हमारा मिशन है, और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए ये हमारा मिशन है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारा साथ दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।